Our discussion with the LCR circuit. So our topic of discussion is power in AC circuit. It's a power in AC circuit, and we have to determine the power factor. तो ये तो हमें बाद में पता चलेगा, बट इज़ पावर फैक्टर एट द एंड ऑफ द डिस्कशन. सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो इस एरिया से सवाल कैसे पूछा जा सकता है. ये हमारा सबसे पहले की पॉइंट है. आपको पहले बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है, उसके लिए आपको तैयार करना होता है. तो क्वेश्चन इज ड्राइव ए फार्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज LCR सर्किट. आपसे फार्मूला कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप एक फार्मूला ड्राइव करिए सीरीज LCR सर्किट के लिए और बाद में बताइए कि पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट क्या होता है. तो हम सबसे पहले LCR सर्किट आपके साथ बनाना चाहते हैं कि ये देखिए, ये सर्किट जिसको हमने बार बार आपके साथ बनाया है, ये है सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, and this is the resistor in the circuit, and this is what the inductor is. This is inductor, and this is capacitor. This is L, C, and R. So the input voltage applied to the circuit is V is equal to Bm साइन ऑफ ओमेगा टी. सो इसमें जो साइन ऑफ ओमेगा टी वाला पार्ट है, ये आपको सुजेस्ट करता है कि आपकी जो वोल्टेज है उसका फॉर्म क्या है. एक साइन कर्व की फॉर्म में है. ये देखिए, ये इस फॉर्म में है वो, और यदि इस फॉर्म में है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये भी है. ये Vm जो है वो प्लस Vm और माइनस Vm के बीच में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. और देन दिस इज द इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर एंड द रेजिस्टर. सो the input voltage जो रहेगी, the voltage is, जो वोल्टेज है वो है is V is equal to Bm sin omega t. I will mark this as equation number 1. And the current driven in the LCR circuit is, ये वोल्टेज जो LCR सर्किट में कितना करंट ड्राइव करेगा, the current driven in LCR circuit is, ये जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक करंट सर्किट में बहेगा. ये सब सीरीज में और तीनों में ही एक सिंगल करंट बहेगा. सो दिस करंट इज I, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. अब इसमें जो ये पार्ट है Im, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम कैसे लिखेंगे. This Im is equal to I is equal to V upon R. So this is maximum value of the voltage, this part, and a resistance. The resistance is it is the impedance of the circuit. अब resistor, capacitor और inductor तीनों इकट्ठा जितना resistance अप्लाई करेंगे, that is called impedance of the circuit. So it is Vm upon Z. Okay. और जो फाई है, ये फाई वाला जो पार्ट है, ये है फेज एंगल. दिस इज द फेज एंगल बिटवीन द सोर्स वोल्टेज. ये जो वोल्टेज अपन अप्लाई की है, दिस इज द फेज एंगल बिटवीन द सोर्स वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट, इसके बीच में. सो दिस फेज फाई इज द फेज एंगल, एंड देन फाई कुड बी डिटर्मिन्ड एज, दिस इज टेंजेंट इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R. So this is all about it. अब हम अपने डिस्कशन को कुछ आगे लेके चलते हैं. अब हमने निकालना है कि इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय द सोर्स कितनी होगी. देयरफॉर instantaneous power supplied by sources by instantaneous power supplied by the sources, power is Vi
So you can write V over here, that is Vm sine omega t, and Im is I is equal to Im. This is Im sine omega t plus phi, right? So now if we have to find the average power, now we are determined to find the average power. So before calculating the average power, we will just solve this part and then we'll go for average power. So now open this bracket. Power is now this is Im Vm sine omega t into sine omega t plus phi. Okay, so using sine a plus b. Sine a plus b is sine a cos b, sine a cos b plus cos a sine b, cos a sine b. So therefore by using the relation from here a is equal to omega t and b is equal to phi. So just substitute this value. We have power is equal to, this is maximum value of current, this is maximum value of voltage, and sine omega t, and then this part could be written now as sine omega t and cos phi plus cos omega t sine phi, right? And then bracket is closed. So now take sine omega t inside. This is power is Im Vm. Now this part will go inside. ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी cos omega t and sin phi, right? So we'll go further with this. Power is this is Im Vm, and you can write this part as 1 minus cos 2 omega t by 2 like this, and then cos phi प्लस आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आप 2/2 कर दीजिए, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, दिस इज साइन 2 omega t sin phi by 2, right? So 2 is now common, you can take 2 outside, so power is equal to Im Vm by 2, and this part is cos phi minus cos 2 omega t cos phi plus sin 2 omega t sin phi like this. So now we will shift our discussions to the average power. So see carefully, what we will do now is to find the average power. So power average is, if we have to find the average power over one cycle, then the way to find it is 1 by t integral of this function, this 0 to t, this is function of t dt. So their function is now this part. So you can write over here
So I'll try to change the color. Let's see, पावर एवरेज. अब इसका सिंबल ये हो जाएगा और आप इसमें भर दीजिए 1/t. ओके, this is 0 to t. Now this is Im Vm by 2, and then the rest of the part is this is cos phi minus cos 2 omega t into cos phi and plus sin 2 omega t into sin phi and then dt. Okay, so just you have to change the color once again. नाउ ये देखिए, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और टू कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट का एवरेज उतना ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा, उसको निकालने का ज़रूरत नहीं है. तो जिसका एवरेज निकाल, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द प्रीवियस वीडियोस. आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें आई एम, यू कैन टेक आई एम वी एम अपॉन 2t, यू कैन टेक इट आउटसाइड. अब आप इसको आगे स्टेप्स में इंटीग्रेट करते हैं. पहले इस पार्ट का इंटीग्रल करते हैं 0 to t. दिस इज cos phi dt माइनस 0 to t. दिस इज cos, हम इसको ऐसे करते हैं कि इसमें हम cos phi वाले पार्ट को बाहर ले लेते हैं. चलो अब अगला स्टेप में करना पड़ेगा. यस, चलिए ये आगे आपके पास अगले स्टेप में करते हैं. 0 to t, ये आ जाएगा cos 2 omega t cos phi dt प्लस 0 to t sin 2 omega t into sin phi dt. अब आप देखिए कि जो cos phi है ये टाइम का फंक्शन नहीं है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं. दिस पार्ट could be taken outside and from here cos phi part could be taken outside. From here sin part could be taken outside. इन सब का बाहर निकाल सकते हैं. यहाँ भी हम इसको इसके साथ लगा देते हैं. You can take this part outside. Now see carefully. This is power average is equal to, this is maximum value of current, this is maximum value of voltage, 2, this is the complete cycle, time period of the complete cycle. अब आप ऐसे करिए, साइन cos phi अपने बाहर ले लिया बिकॉज ये टाइम का फंक्शन नहीं है, तो 0 से लेके t तक इंटीग्रल हो गया और ये वाला पार्ट dt रह गया. माइनस यहाँ से आप cos phi बाहर निकाल लीजिए और अंदर आपका इंटीग्रल रह जाएगा 0 to t और ये cos 2 omega t dt. यहाँ से आप sin phi को बाहर निकाल सकते हैं, sin phi और इंटीग्रल 0 to t sin of 2 omega t dt. ओके, सो जो इंटीग्रल है यूजिंग, अब आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग, ये आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है. यूजिंग 0 to t, दिस इंटीग्रल 0 to t cos 2 omega t dt is equal to 0 to t sin 2 omega t dt. इसको यदि आप इंटीग्रल को ओवर फुल साइकिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0. वेयर आपने इस्तेमाल क्या करना है, ओमेगा को आपने 2 पाई बाई t पुट करना है. ओके, देन दिस आंसर विल बी इक्वल टू 0. व्हाट विल हैपन देन, you can put this part is equal to 0, you can then entire part will become 0. You can put this part is equal to 0, entire part will become 0. और आपके पास अब इंटीग्रल सिर्फ सॉल्व करने के लिए ये वाला पार्ट रह जाएगा. सो पावर एवरेज इज, नाउ पावर एवरेज इज, दिस इज Im Vm by 2t एंड dt का जो इंटीग्रल ओवर 0 to t आ जाएगा, ये आ जाएगा cos phi
or you are left with T and 0 to T. So this is power average is equal to Im Vm upon 2T cos phi, यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा T माइनस 0, दैट इज T ओनली। +2 के बच्चे समझ जाते हैं, ये T के साथ T कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू आर लेफ्ट विद द पावर एवरेज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज Im, 2 को आप ऐसे ले सकते हो √2 और इसको आप ऐसे लिख दें Vm अपॉन √2, 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, दैट इज 2, सो इंटू कॉस फाई। अब जरा अपने पास्ट मेमोरीज में रिकॉल करिए, Im upon √2 is the root mean square value of current and Vm upon √2 is the root mean square value of the voltage। तो इसीलिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज को निकालते हैं ताकि हम इसको डीसी फॉर्म में लिख सकें। सो पावर एवरेज इज इक्वल टू, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ voltage and this is cos phi। So this is all about the power average across the LCR circuit। So most importantly we are now going to discuss, so now you can also write, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पावर है this could be written as power is I square R, so this can also be written as, this can also be written as इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है ना पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R के फार्मूले से भी लिखी जाती है। तो इसको हम ऐसे लिखें कि जो पावर है आपके पास, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर टाइम LCR सर्किट में पूरा इम्पीडेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना हो, दैट इज इम्पीडेंस I स्क्वायर Z cos phi। ओके, सो दिस इज द फाइनल फार्मूला for this। So now this is the time now for us to discuss some special cases involved this। So average power dissipated not only depends upon V and I। So फार्मूला ऊपर वाला जो ये दिखा रहा है कि जो एवरेज पावर जो है V और I के ऊपर डिपेंड करती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द current as well as the impedance of the circuit, and one more thing, that is a phase angle, it also depends on the phase angle between the, अब ध्यान से सुनिए, phase angle between the source voltage and the current in the LCR circuit। ये जो phase angle है, ये angle between phi is the angle between the source voltage and the current in the LCR circuit, right? So this the quantity cos phi, this is called, this is what is asked from you also, power factor। So this quantity is called power factor, okay, cos phi, this part is called power factor, पावर फैक्टर। और ये कितने सुंदरता से इस चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ये आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। अब हम इसी की ही चर्चा करेंगे। अब हम कुछ केसेस जो है वो डिस्कस करते हैं। We will now try to discuss the few cases in the next page। Now power factor, we have driven the expression like this, power is VI and cos phi, it is like this। So the case number one is, case number one is, पहला केस ऐसा है, यदि आपका सर्किट रेजिस्टिव हो, फॉर ए रेजिस्टिव सर्किट, यदि रेजिस्टिव सर्किट हो तो आपको पता है कि वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों एक फेज में होते हैं। इन दिस केस फाई इज इक्वल टू 0, यू रिमेंबर दिस, क्योंकि उसमें जो करंट आता है, जो अप्लाइड वोल्टेज होती है, B इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी होती है, और जो करंट आता है, कॉरस्पॉन्डिंग करंट जो आता है IM, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी ही रहता है। तो दोनों फेज में होते हैं, इसलिए फेज डिफरेंस जो इनमें 0 होता है। सो फाई इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। सो यदि आप इसको पुट करें तो आपको पास क्या मिलेगा, using
in equation number 1 we have, आपके पास क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी आई एंड cos 0 डिग्री, सो दिस पार्ट इज इक्वल टू 1, सो दिस इज p इज इक्वल टू sorry, this is p is equal to vi, this is equal to vi, p is equal to vi. So the first case, यदि आपका केस जो है प्योरली इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, so second case is case number 2 फॉर, दूसरा केस होगा फॉर प्योरली सर्किट आपका या तो इंडक्टिव हो और कैपेसिटिव हो. उस केस में क्या होता है, यहाँ हम फिर लिखते हैं जो यही इनपुट वोल्टेज है फॉर केस इंडक्टर के लिए, इंडक्टर के लिए यही इनपुट वोल्टेज जो है वो करंट कैसा पैदा करती है, ये लिखते हैं सबसे पहले. इसमें करंट इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होगा, I इज इक्वल टू आई एम, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. तो इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल पीछे रह जाता है. तो इसमें फाई क्या हुआ इन केस ऑफ इंडक्टर, पाई बाई टू, और यही वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर में करंट कैसे पैदा करती है, ये आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें. I इज इक्वल टू आई एम एंड दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. बट डज दिस मीन, ये करंट इसमें वोल्टेज से लीड करता है, करंट लीड्स द वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटर एंड करंट लैग्स बिहाइंड इन केस ऑफ इंडक्टर. यहाँ देख लीजिए प्लस पाई बाई टू मीन्स करंट आगे रहता है, माइनस पाई बाई टू मीन्स करंट पीछे रह जाता है वो अप्लाइड वोल्टेज से. तो इन दोनों केसेस में हम देखते हैं कि जो फाई का वैल्यू है वो पाई बाई टू ही रहेगा. ओके, सो you can apply over here this power is equal to, that is vi cos pi by 2, and as you know that cos pi by 2 is equal to 0, so this is answer is 0. so we can say कि आप LCR सर्किट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो पावर कंज्यूम नहीं करते, राइट. ये इसका मीनिंग है, नो पावर इज डिसिपेटेड even though a current is flowing in the circuit. So the current is sometimes, such currents are called buttless currents. Such currents are called the current that consume no power. So power के यूनिट बाट होते हैं, they are called buttless currents. They are called buttless currents. Alright. So now we will move for third case, case number 3. So third case ऐसा है कि in a series LCR circuit power dissipated is जो हमारे पास इक्वेशन में है, series LCR circuit, in series LCR circuit जो पावर है, पावर is given by the equation power is equal to VI cos phi, and this is also represented power is equal to I square Z, right, I square Z cos phi, where cos phi is the power factor. okay, so इसमें जो phi है उसको आप डिटर्मिन करते हैं. अब इसमें फिर आपने बड़ा ध्यान देना है, phi जो है that is tan इनवर्स XC माइनस XL ओवर R. सो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका सर्किट जो है वो कैपेसिटर डोमिनेट हो, इफ XC इज ग्रेटर देन XL तो एक कैपेसिटिव सर्किट होगा. यदि कई बार ऐसा होता है कि XC इज लेस देन XL, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, तो फाई नेगेटिव होगा, राइट. बट इंस्टेड ऑफ दैट इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी नॉन जीरो ऑल्सो in RL, RC or RC LCR circuit. But even such cases power is dissipated only in case of resistor. In all such cases if phi is non-zero, हमने पहले जीरो किया, पाई बाई टू किया, यदि phi नॉन जीरो होता है इन सच केसेस, इसमें भी जो इवन इन सच केसेस जो पावर है
power is dissipated in a resistor only. ओके, पावर इज डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर ओनली. अब हम एक केस आपके साथ और डिस्कस करते हैं. केस नंबर 4. दिस इज केस नंबर 4. सो इन दिस केस, इन दिस पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस में चला जाता है तो रेजोनेंस की कंडीशन एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? देखिए, एट रेजोनेंस एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल होता है, और उस टाइम ओमेगा ज़ीरो की जो वैल्यू होती है 1/√LC होती है. सो एट रेजोनेंस में क्या होता है, जब देन एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल, दिस मीन्स दैट एक्स सी माइनस एक्सएल इज इक्वल टू 0. ओके, सो इस केस में क्या होगा, यहाँ से देखिए जरा, फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा. फाई वॉज as phi is defined by phi is equal to tangent inverse xc minus xl upon r. So if xc minus xl is equal to 0, so phi is equal to 0. So therefore cos phi is equal to 1. So cos phi is equal to 1. And if cos phi is equal to 1, then power is equal to, the power is equal to I square time z हो जाएगा. ओके, और इफ एक्स सी, देखिए रेजिस्टेंस जो जेड होता है ना, जेड होता है, वो होता है आर स्क्र प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्र. ना इफ दिस पार्ट इज इक्वल टू 0, जेड क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर. सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्र आर. इसका मतलब क्या हो रहा है, आप देखिए, जो आपका सर्किट है, पिछले पेज में चलते हैं, जो आपका सर्किट है उसमें एल है, सी है, आर है, बट ओनली ई पार्ट जो है वो पावर कंज्यूम करता है, राइट. पावर डिसिपेटेड ओनली अक्रॉस आर, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. पावर डिसिपेटेड ओनली अक्रॉस आर. सो दैट इज द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट अक्रॉस आर थ्रू आर एट रेजोनेंस. ये आपको समझना है कि रेजोनेंस में जब रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है तो स्टेज के ऊपर पावर इज कंज्यूम ओनली थ्रू R. So I think this is all about this topic, power in AC circuit and the power factor. इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होंगी. यदि फिर भी कोई आपका सुझाव हो, आप फीडबैक में लिख सकते हैं, और आपकी कोई राय हो एक अच्छा मैटर प्रेजेंट करने के लिए, वो भी आप लिख सकते हैं. कोई सवाल हो वो भी आप लिख सकते हैं, और आप मेहनत करिए, वीडियो देखिए, और इसको यदि बहुत अच्छे तरीके से आप फिज़िक्स सीखना चाहते हैं तो इसके बाद आप दोबारा फिर से एनसीईआरटी को पढ़िए ध्यान से, एक एक लाइन करके, एंड देन यू कैन प्रोड्यूस so many good results in the different exams, right? So this is, thank you so much.